बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे another term for the thermodynamic that is entropy। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंट्रोपी है इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। एन का मतलब होता है एनर्जी, दिस इज एनर्जी, ओके, एंड ट्रोपी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। So initially it was considered that entropy, this is entropy and energy were analogous, and today they are also considered uh, interrelated terms. So entropy and energy, we can say that they are analogous. So what's entropy basically? Entropy is the randomness or the disorderness of the system. If we see that, if we see the order of entropy, okay, in the different states of the matter, you can see here that this is a solid state, so the entropy order in solid state is less than this liquid state, and liquid state has lower entropy than the gas. So from this order that we can conclude that the gaseous state has higher order of randomness, so there's a more disorder among the gas molecules. Now if we talk about the formula for the entropy, so this is the formula of the entropy, that delta S is equal to Q divided by the T, and this is energy, okay, this is a heat, okay, for the reversible reaction. If we talk about the unit of the entropy is a joule per Kelvin. The unit of Q is a joule, and the unit for the temperature is a Kelvin. So we can see that entropy is an extensive property. This is extensive property, okay. Extensive property is a data property which depends on the amount of the substance. So we can write the delta S is equal to S2 minus S1. So this is extensive property. Now when we talk about the entropy during the phase transition, for example, in this reaction you can see here that we have this solid, okay. If a solid converts into the liquid state, so if we want to write the entropy change for this, so how can we express it mathematically? So you can see here that this is a delta S, and this is the fusion, okay. Why fusion? Because solid, okay, is very closely packed together, so heat is required to fuse the solid, okay, into the liquid state. तो ये जो डेल्टा एस है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एफ यू एस, फ्यूजन। तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा एच, क्या है कि इसको एंथैल्पी दे रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय टी, ये टी हो जाएगा। टी का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर हुआ। और डेल्टा एच के साथ आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे एफ यू एस लिखेंगे। दिस इज अ फ्यूजन, ओके। सो देयर इज अ फ्यूजन फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. Another we have that this is a liquid, this is a liquid. If liquid is converted into gaseous state, the formula is the same. For example, if this liquid is converted into the gaseous state, so it means that this is the rate of the vaporization, or this process known as a vaporization. So delta S is equal to delta H, and we will write here VAP. VAP means vaporization divided by the T, and we will also write here the VAP, vaporization हम लिखेंगे. Another phase transition is for this, okay, reaction. We have, for example, solid, okay, there's a solid. If solid converts into gaseous state, अगर सॉलिड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स डेट इट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस और कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच, और यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी यू बी. ए सी यू बी का मतलब क्या हुआ कि सब्लिमेशन हो रही है, सॉलिड डायरेक्टली जा रहा है गैसियस स्टेट में, तो इसको हम करेंगे डेल्टा, डिवाइड करेंगे इसको टेम्परेचर से. सो दिस इज द डेल्टा sublimation. There are the so many, we can say, the phase transition,
बट वहाँ पे आपको ये कंडीशन जो है ना, आपको ये देखनी पड़ेगी कि गैस टू लिक्विड जा रहा है, लिक्विड टू गैस जा रहा है, या सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दैट दिस इज सफिशेंट फॉर द फेज ट्रांजिशन. Now, if we compare the rate of entropy for a graphite and a diamond, so you can see here that the entropy is maximum in graphite than the diamond, because diamond is a very hard material. It is the hardest natural known substance, okay, on the earth. So the atoms, they are very closely packed together. However, in a graphite, such a situation does not occur. रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात करें तो इसकी जो एंट्रोपी होती है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि जो आयरन होता है उसका जो मास वगैरह जो होता है वो आपका कन्वर्ट होता है, किस में होता है, वो रस्ट में कन्वर्ट होता है। तो रस्ट का फार्मूला क्या होता है, रस्ट का फार्मूला होता है Fe2 और यहाँ पे O3 और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं NH2 हम लगाते हैं, ठीक है। दिस इज फार्मूला ऑफ द रस्ट। तो देखिए जो सॉलिड एटम होते हैं आयरन में ना, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे जैसे रस्ट उनको लगती जाएगी तो एटम का जो पैक होने वाली जो नेचर है ना, वो कमज़ोर होती जाएगी। तो इसलिए एंट्रोपी जो होती है वो रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान वो बढ़ती है। वी हैव अनदर, फॉर एग्जांपल सम रिएक्शन, ओके, लेट्स डिस्कस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दिस इज सिल्वर आयन रिएक्शन विथ HCl। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डेल्टा H है, डेल्टा S जो है ना, वो डिक्रीज हो रहा है। वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, अब देखिए ये आपके पास सिल्वर है, ठीक है ना, दिस इज प्लस, दिस इज एन एक्वस फॉर्म। जब आप इसमें HCl ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है HCl। सो HCl बेसिकली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेशन बन रहा है, यहाँ पे सॉलिड बन रहा है। तो देखिए एक्वस से जब अगर आपका रिएक्शन सॉलिड में जा रहा है तो प्रेसिपिटेशन बन रहे हैं, तो इट मीन्स डेट इसमें कुछ जो आर्डर है ना वो बन रहा है। सो देयर्स आर्डर, देयर्स नो डिसऑर्डरनेस। सो यहाँ पे देखें डिसऑर्डरनेस जो है ना वो कम हो जाएगा, तो एंट्रोपी कम हो जाती है। अच्छा, बॉइलिंग ऑफ एग, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द एग। अगर एग को अगर आप बॉयल करें तो लोग क्या समझते हैं कि डेल्टा S कम होनी चाहिए, क्योंकि एग जो होता है वो उसमें कुछ लिक्विड होता है, तो लिक्विड जो होता है वो सॉलिड बन जाता है, तो मतलब इसकी डेल्टा S जो होनी चाहिए वो कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। डेल्टा S जो होता है वो इंक्रीज होता है। असल में होता है क्या है कि एग में अंदर जो प्रोटीन होती है ना, तो उस प्रोटीन का जो डी नेचरेशन जो होता है ना वो बढ़ जाता है। प्रोटीन का जो डी नेचरेशन होता है वो बढ़ जाता है। देखिए हीट करने से पहले क्या होता है कि जो प्रोटीन में जो प्रोटीन का जो आर्डर होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल एक इट इज़ वी कैन से ना वेरी ऑर्डर्ड फॉर्म, ठीक है। उसमें सारे जो प्रोटीन वगैरह जो होते हैं एग में वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बेहतर होता है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप उनको हीट करते हैं तो प्रोटीन का जो आर्डर होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वहाँ उसको हम कहते हैं डी नेचरेशन। अनदर एग्जाम्पल वी हैव दिस अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसको डिज़ोल्व करवाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज द अमोनियम आयन और यहाँ पे क्लोराइड आयन। देखें ये क्लोराइड आयन, ये आयन्स बन रहे हैं। तो आयन की बनने की वजह से क्या हुआ कि जो एंट्रोपी जो है वो बढ़ती जा रही है। अनदर वी हैव एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें आपके पास नाइट्रोजन है, दिस इज नाइट्रोजन 10 ATM, ठीक है, दिस इज 10 ATM, दिस इज प्रेशर एंड ओके। इफ नाइट्रोजन गोज फ्रॉम 10 ATM टू 1 ATM, देखिए 1 ATM, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वाई इट इंक्रीजेस, आप देखें हायर प्रेशर पे जो गैस का जो वॉल्यूम होता है ना वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखें जो 1 ATM लिखा हुआ है ये स्मॉलर, देखें आपके पास ये प्रेशर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा एज कंपेयर टू दिस 10 ATM हायर होगा, तो इसकी वजह से एंट्रोपी जो होगी वो इसकी ज़्यादा होगी N2 × 1 ATM। अनदर रिएक्शन अगर आप देखें कि आपके पास दिस इज अ कार्बन
and this is a water. Carbon is in a solid form and water is in liquid form. दोनों रिएक्ट करें, जब दोनों रिएक्ट करें तो क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CO and there is a formation of the hydrogen gas. Okay, this is formation of hydrogen gas. अब यहाँ पे देखें CO is a gas, H2 is also the gas. अब देखें यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। प्रोडक्ट साइड पे देखें दोनों जो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही हैं बोथ आर इन द गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पे जो आर्डर होता है ना प्रोडक्ट साइड पे मतलब आप समझे कि डिसऑर्डरनेस जो होता है प्रोडक्ट साइड पे वो ज़्यादा होता है। इट इज़ देयर इज़ अ हायर डिसऑर्डरनेस, देयर इज़ अ हायर रेंडमनेस ऑन द प्रोडक्ट साइड, देयरफॉर वी कैन से दैट इट डेल्टा एस okay increases from reactant to product. The product has the maximum delta S value, however delta S values are smaller on the reactant side.